A very good evening to everyone once again. In the last class, we were I had summarized you with the chapter the Mother's Day, right? And this is written by J.B. Presley. Though the chapter or the drama is humorous, but it tells about the pathetic state of a mother in a family. Along with that, when a woman stands for her rights, then what happens and how she stands for it, she is not able to come directly, so wo she takes the help of one of her friend, that's Mrs. Fitzgerald. Now we are going to start it along with the NCRT book. I would request each one of you to be very, very, very attentive while taking this class, because now there are two things. One is second May, आपका second term में you'll be definitely having the subjective questions, and when it comes to the objective questions, I've seen that you miss out very tiny informations. This basically is set up at in London suburb. और आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर इज द प्ले सेटअप, तो इट इज सेटअप इन अ लंदन सब अर्बन एरिया. सबब का मतलब होता है आपके सिटी, मेन सिटी से थोड़ा दूर. सब अर्ब, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, सब अर्ब, एंड द प्लेस इज अ लिविंग रूम, राइट? नाउ व्हाट इज द सीनरी अबाउट the living room of the Pearsons family? Afternoon. It's a comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa. मतलब the house is built up in a nice way and it is a villa. You can say that it is not a complete but semi-detached. If necessary, मतलब ये उन्होंने setting दी है कि आप कैसे करोगे if you are इस प्ले को जो हो ड्रामेटाइज करते हो तो. If necessary, only one door need to be used, but it is better with two. One up left leading to the front door, and the stairs, another in the right wall leading to the kitchen and back door. एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ. There can be a muslin covered window in the left wall and possible one on the right wall. Muslin is a type of cloth. बहुत पतला होता है. The fireplace is assumed to be in the fourth wall. There is a settee upright. Settee is a place where we sit like a sofa. An armchair down left and one down right. A small table with two chairs on either side if stands at the center. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. आपसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यू मे बी आस्क की what was the setting like, what was the month, so it was autumn. Mrs. Pearson all right at right and Mrs. Fitzgerald at left. दोनों सामने आमने बैठे हैं and they are having the tea, two teacups and saucers. Saucer जो नीचे रखा जाता है. Cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. यानी कि इससे पता लगता है कि Mrs. Fitzgerald was a fortune teller. She was a fortune teller. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Fitzgerald is older, बड़ी है, heavier, मोटी है, and strong and sinister personality. She is smoking. मतलब you can say that Mrs. Fitzgerald जो थी, she was bit, in a way she is more modern. वो थोड़ी modern है. And sinister matlab you can say an evilish look. I'll write it down.
when you are writing the comparing and writing the character sketch, वहां पर ये words आपको use करने हैं. That is, she is present, she was worried, she is smoking. It is very important these should have sharply contrasting voice. Mrs. Pearson speaks in a light, flurried sort of tone, मतलब थोड़ी हल्के डरी हुई, दबी हुई, with a touch of suburban cockney perhaps. Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish. Cockney is a place. उनका जो टोन है वो उस एसेंट को बिलोंग करता है, एंड फिट्जगेराल्ड का आयरलैंड को बिलोंग करता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ड्रामा इज सेट इन इंग्लैंड, इसीलिए. Mrs. Fitzgerald. And that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. Matlab, they both are right now discussing about the fortune. Maybe Mrs. Pearson had conveyed her feelings. वो कहती है कि सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. All depends on yourself means whatever you want to take the decision, that has to be taken only by you. You have to make up your mind. Yes, thank you. I'm much obliged, I'm sure. It is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? इसको भी आपने जो है ईस्टर्न साइड में, ईस्ट का मतलब हो जाता है द कंट्री लाइक एशिया वगैरह जो है, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है. I did 12 years I had of it with my old man. Old man here is for her husband. Rising to lieutenant quartermaster. मतलब she used to roam around with him. मतलब उनके साथ में ही उनकी पोस्टिंग रहती थी. तब जब वो लेफ्टिनेंट बने थे उस वक्त में she had learned this skill. He learnt a lot and I learnt a lot more. He learnt a lot and I learnt a lot more means उन्होंने अपने फील्ड में he had excelled and I had excelled in my own field. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? लेकिन अब तुम will you put up मतलब कि अपना दिमाग मतलब कि will you take the decision? Put your foot down. Put your foot down. As I told you that day that this particular chapter has many kinds of phrases and idioms. Put your foot down मतलब बस हो गया बहुत. Take a bold step once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your home. तुम्हारे अंदर मतलब कि the choice is yours. Whether you want to live like a servant in your own house or you want to become the boss of your own house, this decision has to be taken by you. तो मिसेस पियर्सन कहती है स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, मतलब शी इज अ सॉफ्ट स्पोकन डोसाइल लेडी. वो बहुत सिंपल है. दैट्स इजियर सेड देन डन. कहना आसान है, करना मुश्किल. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. वो कहती कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ. यहाँ पर fond of them is referring to her family. उसकी जो फैमिली है उसके लिए यहाँ पर रेफर किया गया है. दिस इज फॉर द फैमिली. वो कहते हैं कि अगर इवन वो लोग बदतमीज हो भी जाए ना तो भी आई कैन नॉट बिकम लाइक देम. मैं उनके जैसे नहीं बन सकती हूँ. मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. वो कहती ठीक है लेकिन उनको तमीज आनी चाहिए. येस आई सपोज इट वुड इन अ वे, मतलब अच्छा होगा अगर वो लोग सीख जाए. नो डाउट अबाउट इट ऑल. हु इज बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल? क्या लगता है आपको कौन मतलब कि इस चीज के लिए जिम्मेदार है? ग्रोन मैन मीन्स हर हस्बैंड, दैट इज मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड. लैड उसका बेटा. लैड इज अ वर्ड यूज फॉर बॉय, गर्ल, नोबडी. You think it does them good when you run after them all the time, take their orders if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves? Never in all your life. It's a ruin of them as well as you. वो कहते वो सिर्फ जिस तरीके से वो तुम्हें ट्रीट करते हैं, तुम उनके पीछे पीछे भागते हो,
उनके हर बात को मानते हो. टेकिंग द ऑर्डर्स मीन्स यू आर हियरिंग ईच एंड एवरीथिंग. वो लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, यू स्टे एट होम. ऐसा करके यू आर नॉट गिविंग देम लव, यू आर ruining them. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. हस्बैंड्स या बेटे, घर में जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनमें उन्हें घर में जो औरतें रह रही होती हैं, चाहे वो मदर हो या वाइफ्स हो, उनकी दे शुड रिस्पेक्ट देम. दे शुड नॉट ट्रीट देम लाइक अ ट्रैश. एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी. और ये मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रही हूं, मैं जानती हूं तुम्हारे घर के बारे. मिसेस पियर्सन, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. वो कहते मैं तो उन्हें टाइम टू टाइम हिंट देने की कोशिश करती हूँ दैट आई एम अनहैप्पी. आई कीप ड्रॉपिंग देम अ हिंट, यहाँ पर उसका कहने का मतलब है शी कीप्स ऑन टेलिंग देम इन हिंट दैट शी इज अनहैप्पी. हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन. तुम्हारी फैमिली को हिंट नहीं, कुछ और चाहिए. I suppose it is, but I do hate any unpleasantness. And it is so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. वो कहती है कि वो तो बात आपकी सही है कि I need to treat them, I need to tell them. But मैं घर के अंदर I do hate any unpleasantness, मतलब I do not like anything. घर के अंदर मुझे झगड़े पसंद नहीं है. I don't like arguments in the house. एंड इट इज सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट. और मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ से बात को शुरू करूं, कैसे समझाऊं, कैसे उन्हें बताऊं. फिर वो टाइम देखते कहते ओ गुड ग्रेशियस. यहां पर यू कैन सी गुड ग्रेशियस. alliteration. Look at the time. Nothing ready and they will be at home any moment and probably all in a hurry to go out again. वो कहते हे भगवान कितना टाइम हो गया है और अभी तो मैंने घर में कुछ बनाया भी नहीं और बेचारे सब लोग आएंगे और सबको बाहर भी जाना होगा. As she is about to rise, वो उठने वाली होती है. मिसेस फिट्जगेराल्ड वहां आती है और कहती है let them wait or look after themselves for once. There is where your foot goes down. तुम्हें यहीं से शुरू करना है. You have to take the decision right from here. Start now. अपनी देखभाल वो खुद कर सकते हैं. मतलब she tries to console her. She lights a cigarette from one she has just finished. Mrs. Pearson कहती है Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promise you, I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. वो कहती है कि देखो, आप मेरे को जितना मर्जी समझा लो, मैं आपको प्रॉमिस भी कर दूं, बट मैं उनसे सामने बात नहीं कर पाऊंगी. आई डोंट हैव द गट्स टू टेल देम. तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है देन लेट मी. वो कहते ओ नो, क्योंकि उसको लगता है मिसेस फिट्जगेराल्ड उसके घर आके बात करने वाली है. बट दैट वुडंट डू एट ऑल. इट कुडंट बी पॉसिबली बी समबडी एल्स. कहते कोई और हमारे घर के मामलों में बात करे वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. दे वुड रिसेंट इट एट वंस. रिसेंट मतलब वो बिल्कुल मना कर देंगे. एंड वुड नॉट लिसन. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. वो कहती है मुझे पता, मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती, मुझे पता मुझे ही करना, बट पता नहीं. You haven't got the idea. वो कहती है तुम्हें समझ नहीं आया. You haven't got the idea means I think you haven't understood. I'm sorry, I thought you asked me to let you do it. यहाँ पर जो let you do it बोल रही है, this means she wants to, उसको लगा that Mrs. Fitzgerald wants to come to their house and speak to their family. I did, but not as me, as you. मैं बिल्कुल वैसा ही उनको समझाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बनकर नहीं, तुम बनकर. But I don't understand. You couldn't mean me.
we change places or really bodies. You look like me, I look like you. यहाँ पर it is but that's impossible. ऐसे कैसे हो सकता? How do you know? Ever tried it? तुम्हें कैसे पता? कभी देखा? No, of course not. I have, not for some time. But it still ought to work. मैंने देखा, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं, not for some time, but it still ought to, won't last long, but long enough for what we want to do. वो कहती है कि ज्यादा देर तो ये मतलब कि नहीं टिकता, बस जितनी देर के लिए हम लोगों का जो काम होना है वो उतने टाइम के लिए वी कैन एक्सचेंज आवर बॉडीज. Learned it out east, of course, where they are up to all these tricks. ये सब चीजें मैंने जो है आई हैड लर्नड इन ईस्टर्न एरियाज में मैंने लर्न किया था. वहां पर उन सबको ये सारे ट्रिक्स जो है दे नो. I don't know what is the problem with. Give me your hands. यहाँ जो give me है, it's an olden style of English. Give me मतलब give me. Give me your hands means give me your hands. It's an olden style. Well, I don't know, is it right? क्या ये सही है? It is your only chance. Give me your hands and keep quiet a minute. Just don't think about anything. Taking her hands now, look at me. Then she mutters some word. Ashratam dam करके she just speaks some word. और उसके बाद they just exchange your personality. दोनों एक सेकेंड के लिए दे आर लैक्स. गो लैक्स मतलब एकदम खामोश हो जाते हैं, स्टिल, जैसे मर गए हो. देन बोथ ऑफ देम एक्सचेंज योर पर्सनालिटी. नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग. मिसेस पियर्सन, अब मतलब अब उसके अंदर तो मिसेस फिट्जगेराल्ड है ना. सी व्हाट आई मीन डियर, हियर यू डोंट वांट. And she snatches it and puts in her own mouth, puffing contentedly. और उसके बाद वो मिसेस फिट्जगेराल्ड के उसे निकाल के कहती है अब मुझे चाहिए, क्योंकि मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर तो मिसेस पियर्सन है. वो देखती है, पहले तो वो चिल्लाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल शी गिव्स अ स्क्रीम. फिर वो कहती है ओ इट हैज हैपेंड. ऑफ कोर्स इट हैज हैपेंड, वेरी नीडेड एंड आई नो आई हैड इट इन मी. Mrs. Fitzgerald, but whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and children can't see me like this. यहाँ पर जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो है जिसके अंदर मिसेस पियर्सन है. वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता. वो कहते हैं they aren't going to. That's the point. They will have me to deal with. Only they won't know it. अब देखना उन्हें मुझसे डील करना पड़ेगा, बस उन्हें पता नहीं लगेगा. But what if we cannot change back? It would be terrible. और अगर हम दोनों वापस नहीं हो पाए तो. Here, steady, Mrs. Pearson. If you had to live my life, it wouldn't be so bad. You would have more fun as me than you have had as you. कहती कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी गया ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मजे में जियोगे, क्योंकि तुम्हें इतना मजा आएगा मेरी जिंदगी में कि तुम्हें कभी सोचा नहीं होगा. Yes, but I don't want to be anybody else. Now stop worrying. It's easier changing back. I can do anytime we want. कहती ठीक है, do it now. वो कहती है नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट. दैट्स द आइडिया. डिडंट नो हाउ टू बिगिन. तुमने कहा था ना मैं तुम्हें दिखाती हूँ. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूंगी? वो कहती है गो इन टू माई हाउस. देर इज नो बडी. देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग. यू ऑट टू एंजॉय इट. बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर एनी वन कम्स. जाओ मेरे घर में बैठ के एंजॉय करो, बीच बीच में आकर देखना क्या चल रहा है. वो कहती चलो, आई सपोज दैट्स बेस्ट. You are sure it will be all right? Chuckling, हंसते हुए वो बोलती है yes, it will be wonderful. जाओ. अब वो चली जाती है. Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the card for patients on the table. अब वो खेल रही होती है. सबसे पहले आती है डोरिस पियर्सन.
She is a pretty girl in early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. With him, Mum, you will have to iron my yellow silk. Yellow silk here is referred to the, it's used for the, what we call it is called as synecdoche. ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इट्स कॉल्ड एज सिनेक्डॉक. सिनेक्डॉक का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच इन विच आप एक पार्ट को बोलते हो बट हम पूरे चीज के लिए बोल रहे हैं. लाइक आई हैव 4 व्हीलर्स हम बोलते हैं, लेकिन 4 व्हीलर्स इज यूज फॉर द एंटायर कार. तो यहाँ येलो सिल्क जो है दैट्स यूज फॉर हर ड्रेस. आई मस्ट वियर इट टू नाइट. फिर वो देखती है अपनी मम्मी को. व्हाट आर यू डूइंग? Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but it is not apologetic but cool and incisive. बात करती है normally. What do you think I am doing? Whitewashing the ceiling? तुम्हें क्या लग रहा है? मैं क्या छत को whitewash कर रही हूँ? But you are smoking. That's right, no law against it. क्यों? कोई law है? But I thought you did not smoke. मुझे तो लगा था आप स्मोकिंग नहीं करते हो. फिर तुम रॉन्ग थे. फिर डॉरिस पूछती है, आर वी हैविंग टी इन द किचन? हम कहाँ चाय पियेंगे? का घर बड़ा है, सो दे हैव द प्लेस इन द किचन ऑल्सो, इन द डाइनिंग ऑल्सो. वो कहते हैव इट वेयर यू लाइक डियर. वो कहते जहाँ तुम्हारा मन करते जाके पी लो. कहते डू यू मीन इट इजंट रेडी? योर्स इजंट. आई हैव had all I want. Might go out later and get square meal at the Clarendon. वो कहते तुम्हारा नहीं, मैंने तुम्हारी चाय नहीं बनाई है, मुझे जो पीना था मैं पी चुकी हूँ. शाम को शायद मैं क्लैरेंडन जाके डिनर करूंगी. कहती है हु माइट? वो कहती है कौन जाएगा? कहते आए. हु डू यू थिंक? कौन जाएगा? मैं ही तो जाऊंगी. डॉरिस कहती है मम व्हाट्स द मैटर विद यू? क्या हुआ मम्मा? डोंट बी सिली. इट्स नॉट मी दैट इज बीइंग सिली. I must say it is a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? वो कहती है कोई मजाक नहीं है मम्मा, मैं पूरे दिन काम करके आई हूँ, आपने मुझे चाय तक नहीं पिलाया और आपने मेरे कपड़े भी आयरन करने. वो कहते डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड. ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड I'm going to wear it tonight, so I want it ironed. वो कहते मुझे चाहिए, मेरे को रात को पहनना है. Want it ironed? What do you think it's going to do? Iron itself? Want it ironed मतलब मुझे वो प्रेस्ड चाहिए. तो कहते प्रेस्ड चाहिए तो तुम्हारा मतलब क्या, कपड़े अपने आप प्रेस हो जाएंगे? डॉरिस कहती नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू. Well, this time I don't, and don't talk rubbish to me about working hard. I have good idea about how much you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do and get no wages nor thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? वो कहते हैं कि देखो मुझे तो काम के बारे में बताओ मत, तुमसे दुगना मैं काम करती हूँ, बट आई डोंट रिसीव एनी थैंक्स नॉर एनी सैलरी. वो कहते वैसे तुम जा कहाँ रही हो? वो कहती है कि विथ चार्ली स्पेंस. कहती वाई? वो कहती वाई व्हाट्स द मैटर विद यू? Why shouldn't I go with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objection? Go on and you might as well tell me. और वो भी बता दो अगर आपको बताना है तो. She is very arrogant. Can't you find anybody better? तुम्हें और कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? I wouldn't be seen dead with Charlie Spence. Buck teeth and half-witted. आधे दांत बाहर निकले हुए और आधा पागल. He isn't. When I was your age, I would have found somebody better than Charlie Spence or given myself as a bad job. मतलब अगर मैं तुम्हारी एज में होती ना तो मैं चार्ली स्पेंस से ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढती या तो छोड़ देती. और गिवन माई सेल्फ अब ऐसे बैड जॉब, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसी गंदी चॉइस से अच्छा मैं छोड़ देती. ओ शट अप. डॉरिस अब रोना शुरू कर देती है. मिसेस पियर्सन हंसना शुरू कर देती है. अब साइरल पियर्सन अंदर आता है. ही इज अ मैस्कुलिन काउंटरपार्ट ऑफ डॉरिस. मैस्कुलिन काउंटरपार्ट मतलब वो उसका भाई है. ही इज अ सिबलिंग. हेलो मॉम, टी रेडी? नो. कहता व्हाई नॉट? आई कुडंट बॉदर. क्योंकि मैंने नहीं बनाया. आई कुडंट बॉदर मतलब मैंने नहीं बनाया. फीलिंग ऑफ कलर मतलब आर यू नॉट वेल और समथिंग?
आप ठीक नहीं लग रहे हो क्या? वो कहते हैं नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, आज से ज्यादा खुश तो मैं कभी नहीं रही। व्हाट्स द आइडिया देन? तो फिर क्या हुआ? जस्ट अ चेंज। वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम। अब मम्मा छोड़ो ना, स्नैप इट ऑफ। मैं मम्मा अब मजाक करना बंद करो, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्लीज। Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks in. वो कहते मेरे पास तो बहुत टाइम है भाई। Yes, but I haven't got a busy night tonight. Did you put my things out? आपने मेरे सामान वगैरह ठीक करके रखा? Can't remember, but I doubt. शायद मैंने नहीं किया। Now look, when I asked you this morning, you promised, you said you would have to look through them first in case there was any mending. मैंने आपको सुबह पूछा था ना, और आपने क्या कहा था, मैं एक बार खुद देख लूंगी बेटा, अगर उसमें कोई मेंडिंग का मतलब कुछ ठीक ठाक करना हो, जैसे कपड़ों में कोई सिलाई वगैरह करनी हो। येस, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। हाँ, सुबह मैंने कहा था, अब मुझे मेंडिंग करना नहीं पसंद आ रहा। दैट्स नाइस वे टू टॉक। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल टॉक लाइक दैट? ये अच्छा तरीका मम्मा बात करने का। अगर हम लोग सब ऐसे बात करेंगे तो क्या होगा? यू ऑल डू टॉक लाइक दैट। If there is something at home you don't want to do, you want to do it. If it is something at your work, you get the union or bar. Now that's all happened is that I have joined the movement. बेटे तुम लोग ऐसे तो करते हो, अगर घर में कोई काम होगा तो तुम नहीं करोगे, और अगर ऑफिस में होगा और अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम यूनियन बना लोगे, या बार, मतलब कि यूनियन टू बार मतलब इट्स अ मूवमेंट, इट इज अ ग्रुप। वो कहते हैं मैं भी अब ऐसा ही करने वाली हूँ। आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग ऑन? लैकोनिक एंड सिनिस्टर, थोड़ा सा जिद से चेंजेस, थोड़ा अड़ अड़ कर। अब डॉरिस अंदर आती है, वो थोड़ा रो रही है। शी लुक्स पेल, थोड़ा वीक। यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। वो कहती कितनी खराब लग रही हो तुम, ऐसी शक्ल तो मैं चार्ली स्पेंस के साथ भी ना चलूं। डॉरिस, oh shut up about Charlie Spence, and anyhow I'm not ready yet, just dressing, and if I do look terrible it is your fault, you made me cry. तो वो कहते हैं कि अगर मैं इतनी बुरी लग रही हूँ ना तो आपने मुझे रुलाया, आपकी वजह से मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। अब साइरल पूछता व्हाट डिड शी डू? डॉरिस उसे कहते हैं नेवर यू माइंड, तुम अपना काम करो। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट? स्टाउट इज अ ड्रिंक। आई कांट रिमेंबर। साइरल कहता है बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। कहते आपको तो नहीं चाहिए ना? कहते मुझे चाहिए। वो कहते व्हाट फॉर, किसके लिए? वो कहते टू ड्रिंक यू क्लॉट। अबे वो बेवकूफ, स्टाउट क्या करूंगी मैं, पीऊंगी और क्या करूंगी? अब साइरल और डॉरिस जो है दे डोंट नो, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो आपस में बात कर रहे हैं। हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? डॉरिस पूछते मम्मी तुम्हारे साथ भी ऐसी बात कर रही थी? यस, नो टी रेडी, कुडंट केयरलेस, बिल्कुल। वेल आई एम ग्लैड इट इज बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। डॉरिस कहती चलो, इस बात से मुझे खुशी हुई कि मम्मा ने दोनों को डांट लगाई, मुझे तो लगा मुझसे ही कोई गलती हो गई। सो डिड आई, बट इट इज हर ऑफ कोर्स। साइडल कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन गलती उनकी है। शी वॉज स्मोकिंग प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम, आई कुडंट बिलीव माई आईज। वो कहते कि मम्मी तो कार्ड खेल रही थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ मम्मा स्मोक करती हैं। आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट। मैंने तो पूछा भी मम्मी ठीक हो आप? वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, एंड दैट्स वॉट मेड मी क्राई। इट वॉजंट वॉट शी सेड बट द वे शी सेड एंड द वे शी लुक। कहते मम्मी एकदम अलग हो गई। मुझे मम्मी की बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन मम्मी ने जिस तरीके से बोला, जिस तरीके से मेरी तरफ देखा ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। साइलर कहता है हैवंट नोटिस, शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी। तो मुझे तो मम्मी वैसी ही लगती। शी डजंट, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो? डॉरिस कहती है कि कहीं मम्मी को कोई चोट वोट तो नहीं लगी? डू यू मीन शी इज बार मी, मतलब उनके सर पे? यू फैट हेड, यू नो कंफ्यूजन शी माइट हैव, मतलब दौरे पड़े हों, कंफ्यूजन मतलब दौरे पड़े हों। ओ मोटी बुद्धि वाले, उनको कभी कुछ दौरे वौरे पड़ गए हों। साउंड्स फार फेच्ड, हाँ ठीक तो लग रहा है, शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी। और दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाते हो। नाउ देन व्हाट इज इट?
इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, मम्मी ऐसे ही बिहेव करेंगे अगर पापा आएंगे. आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट 2 front dress circles फॉर द फर्स्ट टाइम. अब वो कहते हैं कि मैं तो अभी घर में ही रहूंगा, देखता हूँ क्या होता है. ये दोनों बात कर रहे हैं, तभी मिसेस पियर्सन वहां आ जाती हैं, हाथ में बोतल, आधी बोतल मतलब आधा ग्लास फिला फिला हुआ. दोनों जो है हंस रहे होते हैं, स्टॉप देयर गफिंग एंड गिगलिंग. बट मम्मी पकड़ लेती हैं. यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मी बीइंग ग्रोन अप. व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी एट योर एज. हमेशा तो तुम लोग बोलते रहते तुम बड़े हो गए हो, तो जरा बड़े होकर दिखाओ. तो कहती कांट वी लॉफ, हम हंस भी नहीं सकते. तो कहते चलो ठीक है, अगर इतना फनी है तो मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूं. यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम. मम्मा आपको पता है ना, आप हमारे जोक्स नहीं समझती हो. या आई वॉज यार्निंग एट योर जोक बिफोर यू वर बॉर्न. हाँ हाँ, मुझे जोक्स कहाँ समझ आते थे. जब मैं बच्ची थी तो जोक्स पर तो मैं उबासी मारती थी, तुम लोग हंसते हो. अब उसको बड़ा ही बुरा लगता. व्हाट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दैट, व्हाट हैव वी डन. मम्मा आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हमने क्या कर दिया. नथिंग, बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो. कुछ नहीं, घर आओ, कुछ सामान मांगो, फिर चले जाओ, फिर कुछ चाहिए होगा तो वापस आ जाओ, जब कहीं और नहीं जाना हो तो घर वापस आ जाओ. साइरल कहता लुक इफ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ. अगर आप चाय नहीं बनाओ तो मैं कुछ और पी लूँ. कहता ठीक है पी लो, हेल्प योर सेल्फ. माइंड यू आई थिंक इट इज अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे. इट्स अ बिट थिक अगेन इज अ प्रोवर्ब. कहता कुछ ज्यादा हो गया, मैं सारा दिन काम करता. बिट थिक इज यू. सेम हियर. वो कहती है 8 hours डे. साइरल कहता है यस 8 hours डे एंड डोंट फॉरगेट आई हैव डन माई 8 hours. दैट्स डिफरेंट. वो कहती है ठीक है, मैंने भी अपने 8 घंटे पूरे कर लिए. वो कहते हैं आपकी बात अलग है. तो कहती है इट वॉज, नाउ इट इज इन. 40 hours वीक फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ. अब मैं भी ऐसा ही करूंगी, 8 घंटे मंडे टू फ्राइडे काम करूंगी, सैटरडे संडे मैं भी छुट्टी लूंगी. और दोनों देखते हैं ये क्या हो गया मम्मी को. मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप. वो कहता भाई मुझे कुछ खाना पड़ेगा, मम्मी से झगड़ा करने के लिए ना मुझे अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा. मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे संडे. मतलब आप सैटरडे संडे कुछ नहीं करोगी. नो आई वुडेंट गो दैट फार, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ. I might make a bed or two or do a bit of cooking as a favor, which means, of course, I'll be asked to be very nice, thanked for everything, generally made a fuss of. But any one of you 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it, and for a nasty disappointment might go off for the weekend perhaps. वो कहती देखो मैं थोड़ा बहुत काम कर दूंगी, आपकी बेड बिछा दूंगी, थोड़ा बहुत खाना भी बना दूंगी, लेकिन आप लोगों को हर बात मुझे बड़े प्यार से पूछना होगा, और जब मैं काम कर लूं तो थैंक्स भी बोलना होगा, और उसमें कोई बुराई नहीं निकालनी होगी. खुद को बोलते हो ना सिर्फ 40 hours, अगर मेरे काम में कोई बुराई निकाली, मुझे थैंक्स नहीं कहा ना, तो अगली बार तो मैं जो हूं वीकेंड ट्रिप पे चली जाऊंगी. तो डोरिस कहती गो फॉर द वीकेंड, आप वीकेंड पे चले जाओगे. कहते क्यों. I could do with a change. Stuck here day after day, week after week. If I don't need to change, who does? कहती चेंज तो मुझे चाहिए, सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ तो मैं चली जाऊंगी. बट वेयर वुड यू गो एंड हु वुड यू गो विद. आप किसके साथ जाओगे, कहाँ जाओगे. दैट्स माई बिजनेस. यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू. वो कहते हैं कि यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो. आप मुझसे पूछते हो आपको कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो. वो कहते मेरी बात अलग है. वो कहते द ओनली डिफरेंस इज आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट इज यू हु शुड डू द आस्किंग. मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, उल्टा तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए किसके साथ नहीं. डोंट टेल मी. डोरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग. मम्मी आपको सर में चोट तो नहीं लगी. नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग. मेरे तो सर में नहीं लगी, लेकिन तुम्हारा सर जरूर फोड़ दूंगी अगर तुमने चुप नहीं रही तो. ओ दैट्स ऑफुल. और वो रोना शुरू कर देती है. स्टॉप ब्लबरिंग, यू आर नॉट अ बेबी.
If you are old enough to go with Charlie Spence, you are old enough to behave properly. Now stop. अब ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम चार्ली के साथ घूम सकती हो ना, तो अपना थोड़ा मेच्योर बिहेव कर सकती हो. अब उनका उनके फादर आ जाते हैं, जॉर्ज पियर्सन. ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सॉल्व, अपने आप में खोया, सेल्फ इंपॉर्टेंट, खुद को इंपॉर्टेंस देना, पॉम्पस, थोड़ा शो, प्रेफरेबली ही शुड बी अ हेवी स्लो मूविंग, धीरे धीरे. हुआ था. डॉरिस को पूछता, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, क्या हुआ? डॉरिस कहती अभी देखना. जॉर्ज कहता है, डिड शी से यू विल सी, मतलब आप देखोगे? वो कहती यस. व्हाट डिड शी मीन? कहती जाके उसी से पूछो. फिर जॉर्ज देखता है कि उसके हाथ में स्टाउट है. स्टाउट? यस. व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई फैंसीड. एट दिस टाइम ऑफ डे? अभी? वो कहती है यस. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस टाइम ऑफ डे? क्यों, इस वक्त में क्या बुराई है? नथिंग आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर. मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा. वो कहती कोई बात नहीं, आप देख लेना. You are seeing me now. Yes, and I don't like it. It doesn't look right. I'm surprised. वो कहता ये अच्छा नहीं लग रहा. Well, that ought to be a nice change for you. ठीक है, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा, चेंज देखो. What do you mean? It must be some time since you were surprised at me, George. एक्चुअली बहुत दिन हो गए ना, मैंने तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें दे रही. I don't like surprises. I'm all for a steady going. You ought to know that by this time. By the way, I forgot to tell you this morning I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club tonight and a bit of supper going, so no tea. बोलता ओ, मुझे ना चेंजेस पसंद नहीं है, और वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा. पहले आज स्नूकर मैच है, चाय भी वहीं पर है और खाना भी है. बोलते दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी. दैट्स ऑल राइट मतलब ठीक है, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है. यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी? तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने चाय नहीं बनाया? यस, एंड गुड थिंग टू, एज इट टर्न आउट. अच्छा ही हो गया ना, अब तुम्हें चाहिए ही नहीं. दैट्स ऑल वेल, बट सपोज आई हैड वांटेड सम. कहता अगर मैं मांगता तो. माई गुडनेस, लिसन टू द मैन, अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन एवर वांट. एवर ट्राइड एट दैट द क्लब? कहता वाह, कैसा अजीब आदमी है, जो चाय इसको पीनी नहीं है वो चाय इसको चाहिए. कभी ऐसा जाकर क्लब में बोला मुझे पीनी नहीं है, लेकिन तुमने ग्लास में क्यों नहीं बॉटल डाला? ट्राइड व्हाट एट द क्लब? गोइंग अप टू द बार, टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट. जाके क्लब में बोलो ना कि मुझे बियर नहीं पीनी है, लेकिन तुमने ग्लास में बियर क्यों नहीं डाली है? आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ. और हंसेंगे जितना अब हंसते हैं. दे लाफ एट मी? दे डोंट. मुझ पर तो नहीं हंसते वो लोग. Of course they do. You ought to have found out this by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. वो तो और कोई होता ना, उसको अभी तक पता भी लग जाता तुम्हारा कितना मजाक उड़ाते हैं. तुम तो उनके स्टैंडिंग जोक हो, तुम्हारे बारे में मजाक उड़ाना तो उनका काम है. उनको लगता है तुम बड़े ही धीरे धीरे चलते हो और बहुत दिखावट करते हो, इसलिए तुम्हें पॉम्पी ओम्पी बोलते हैं. नेवर. It has always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling your names. मतलब मेरे को तो हमेशा ही बात समझ नहीं आती है. Just 1 second बेटा.
इट इज ऑलवेज बीटन मी, मतलब ये बात मुझे बार बार, इट यूज टू कम इन टू माई माइंड. इट हैज ऑलवेज बीटन मी इज अगेन अ फ्रेज. Why you should want to spend so much time at a place where they are. मुझे नहीं समझ आता था कि तुम उस जगह पर अपना टाइम क्यों स्पेंड करते हो जहां लोग तुम्हारे पीछे हंसते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं. लीविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजंट मेक यू लुक अ फूल. जो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, जो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती है, तुम उसको छोड़कर इन लोगों के साथ रहते हो. अब साइरिल आता है. हेयर साइरिल, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Ompy, do they? Go on, tell me, do they? अब साइरल जो है वो थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है, गुस्सा भी है. वो कहता है यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू. मतलब कि जॉर्ज जो है एकदम से शॉक हो जाता है. हेयर साइरल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड दैट. साइरल अपनी मम्मी को बोलता है दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइंड टू. आपने मम्मी पापा का और मेरा दोनों का दिल दुखाया. Sometimes it does people good to have their feelings hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. सच्चाई ज़्यादा देर तक जो है दर्द नहीं देती. If your father didn't go to club so often, perhaps they would stop laughing at him. अगर तुम्हारे पापा वहाँ जाना थोड़ा कम कर देना तो वो लोग थोड़ा मजाक उड़ाना भी बंद कर देंगे. बता I doubt it. Possibly you do, but what I doubt is whether your opinion's worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. देखो तुम्हें क्या पता, वैसे तुम्हारे ओपिनियन की कोई मतलब नहीं है. वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग मीन्स योर ओपिनियन डजंट मैटर. तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा पैसा जो हो यू आर स्पेंडिंग ऑन द ग्रे हाउंड. मतलब तुम तो हाउंड के जो रेसेस होते हैं उन पर पैसा लगाते हो. वेल व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई. तो मैं अगर पैसा लगाता हूँ तो क्या हुआ, मुझे अपनी एंजॉयमेंट करनी है. I wouldn't mind so much if you were really enjoying, but are you? And where is it getting you? वो कहते हैं लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो, ऐसी हरकतें करके कहाँ जाओगे तुम. साइरल देखता है, तभी दरवाजे पे खटखटाहट. माइट बी फॉर मी, आई विल सी. देखता हूँ मेरे लिए कोई ना आया हो. फिर मिसेस पियर्सन, ये जो मिसेस पियर्सन लिखा ना बेटा, दिस इज नॉट एक्चुअली मिसेस पियर्सन, दिस इज स्पोकन बाय साइरल. यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है. It is that silly old bag from next door. साइरल बोलता है अरे वो पड़ोस की बुढ़ी आई है. Silly old bag is here referred for Mrs. Fitzgerald. And this is spoken by Cyril, not Mrs. Pearson. It is misprinted here. Certainly you don't want here, do you? Mrs. Pearson कहती है नहीं भाई मुझे चाहिए. Ask her. And don't call her silly old bag either. She's a very nice woman with a lot more sense than you will ever have. एक्चुअली मिसेस फिट्जगेराल्ड तो वो खुद ही है. तो कहते हैं उन्हें ऐसे मत बुलाना, तुमसे ज़्यादा अच्छी हो. साइरिल चला जाता है. मिसेस पियर्सन अपना स्टाउट ख़त्म करके आती. साइरिल फिर वापस अंदर आता है. अब मिसेस फिट्जगेराल्ड यानी कि जो इनकी मदर है ओरिजिनल, कम इन मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट. तो साइरिल कहता है नो इट इजंट. कहते हैं ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट. सब कुछ ठीक तो है. साइरल कहता है वाई शुड आई बी क्वाइट. वो कहते हैं बिकॉज आई टेल यू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकैन. वो कहता है तुम बेवकूफ. पाइकैन इज यूज फॉर फुलिश. ओ नो श्योरली. जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है मतलब मिसेस पियर्सन जिनके अंदर है, वो कहते हैं नो 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 ऐसे मत बोलो. वो कहते हैं नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे. मतलब मैं अपने फैमिली को खुद मैनेज कर लूँ. वो कहते हैं बट साइरल, मिस्टर साइरल पर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड. तो साइरल जो है गुस्सा हो जाता है. वो कहता है प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आप यहाँ से जाओ. ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग. कहते नथिंग मच जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस दैट्स ऑल. पुटिंग देम मतलब उनको उनकी जो पोजीशन है वो बता रही हूँ. डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस. तुम्हें ऐसा बहुत पहले कर देना चाहिए था. इज जॉर्ज होम. अब जॉर्ज उसके लिए तो हस्बैंड है तो वो जॉर्ज के नाम से बोलती है. Yes, I have been telling them what they think of him at the club. वो कहते हैं हाँ मैंने उसे बता दिया क्लब में उसका कैसा मजाक उड़ाते हैं. Well, they think a lot of them, don't they? No, they don't, and now he knows it. तो वो तो काफ़ी चीज़ें सोचते हैं. Oh dear, I wish you hadn't. तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मिसेस फिट्जगेराल्ड.
Nonsense them all a world of good and they will be eating out of your hand soon. Eating out of your hand soon मतलब अभी बहुत जल्दी जो है ना तुम्हारी तुम्हारी सारी बातें मानना शुरू कर देंगी. They will be hearing to your orders. I don't want them eating out of my hand. Well, whatever you want, they will be doing. अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी से नहीं, लेकिन जैसा तुम चाहोगी वैसा ये करेंगी. Mark my words, Mrs. Pearson. तभी जॉर्ज अंदर आता. He is unpleasantly surprised. उसको अच्छा नहीं लग रहा है. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald. वो ध्यान से देख रहा होता है कि जो मिसेस फिट्जगेराल्ड आई हुई है. जॉर्ज जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जगेराल्ड. वो कहती है यस आई सपोज सो जॉर्ज. मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर तो मिसेस पियर्सन है तो वो जॉर्ज बुला देती है. वो एकदम जॉर्ज. वो कहते ओ आई एम सॉरी. तो मिसेस पियर्सन व्हाट डज इट मैटर, योर नेम इज जॉर्ज ना. हु डू यू थिंक, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग. खुद को क्या एडिनबर्ग का राजा समझते हो? एडिनबर्ग इज अ प्लेस इन लंदन, स्कॉटलैंड. What he has got to do with it? Just tell me. And isn't it bad enough without her calling me George? यहाँ पर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग क्यों आ गया? और ये बुरी बात नहीं है कि हमारी पड़ोसी आके मुझे मेरे नाम से बुला रही है. नो टी पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, पुअर डॉरिस हैज बीन क्राइंग एंड यस क्राइंग हर आईज आउट. वो इतनी बुरी तरीके से रो रही है. क्या चल रहा है? ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन. तो मिसेस फिट्जगेराल्ड यानी कि जिसके अंदर मिसेस पियर्सन है वो कहती है मुझे पहले ही समझना चाहिए था. जॉर्ज को समझ नहीं आता. यू ऑट टू हैव नोन. Why you ought to have known? Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. We are at sixes and sevens. Sixes and sevens मतलब we are already puzzled. हम खुद ही परेशान हैं. अब तुम आकर और परेशानी. तुम्हें क्यों पता होना चाहिए? I won't excuse you, George Pearson. Next time a friend and neighbor comes to see me, just say something good when you see her. Good evening or how do you do or something. And don't just march and sit down without a word. It is bad manners. अब जो मिसेस पियर्सन है यानी कि जिसके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो कहती है कि देखो जॉर्ज पियर्सन, मेरे फ्रेंड्स के साथ तमीज़ से पेश आना. अगली बार आओ तो उनसे नमस्ते करना और बिना मतलब कि ऐसे आकर बैठ मत जाना. Mrs. Fitzgerald, no, no, it's all right. Mrs. Pearson, no, it isn't all right. We have all some decent manners, and I'll know the reason why. Well, समझ आ गया ना? वो कहती well what? Mrs. Pearson, why don't you get off to your club? Special night tonight. They will all laugh. Go on then, don't disappoint them. तुम क्लब क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना. जाओ. George, that's right. Make me look silly in front of her now. Go on, don't mind me. Six and sevens. Poor Doris being crying, getting the neighbors in to see the fun. हाँ, मेरे को पड़ोसियों के सामने मेरा मेरा मजाक उड़ा लो. बेचारी बच्ची रो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. पड़ोसी आके हमारे घर का तमाशा बना रहे हैं. All right, let her hear. What's the matter with you? Have you gone balmy? पागल तो नहीं हो गई हो? वो कहती है If you shout at me again, George Pearson, I'll slap your big fat silly face. अगर तुम मुझ पर चिल्लाए तो मैं जोर से एक चांटा लगा दूंगी. मिसेस फिट्जगेराल्ड, ओ नो 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 मिसेस फिट्जगेराल्ड. कहते हैं ईदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू. या तो मैं पागल हो गया हूं या तुम पागल हो गए हो. मिसेस फिट्जगेराल्ड पियर्सन को कह रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड समझ नहीं आ रहा. वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. टेल हर टू स्टॉप. वो कहते तुम अपने आप को शांत होने के लिए क्यों कह रहे हो? मिसेस पियर्सन, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन. ऑल राइट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. मिसेस फिट्जगेराल्ड. तभी डॉरिस अंदर आ जाती है. हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस. वो कहते व्हाट्स दैट टू डू विद यू. आपको उससे क्या? मिसेस पियर्सन कहते हैं स्टॉप दैट. वो कहते नो नो इट्स ऑल राइट ठीक है ठीक है. वो कहते इट डजंट, आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट. नाउ आंसर मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रॉपर्ली डॉरिस एंड गो अपस्टेयर्स अगेन. या तो तमीज से बात करो या ऊपर जाओ. वो अपने पापा की तरफ देखती है. वो कहता है डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव. भैया मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, छोड़ दो मुझे. वेल आंसर हर. आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ. ओ व्हाट अ पिटी. व्हाई हैव यू? बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर हैज बीन गोइंग ऑन मेकिंग मी फील मिजरेबल on and saying he's got buck teeth and half witted.
अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुन लो, मेरी मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है, वो मुझे बार बार कह रही है कि उसके आधे दांत बाहर है, वो आधा पागल है. ओ यू शुडेंट हैव सेड, मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर. जॉर्ज, टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी. अच्छा, तो अब उससे पीछा छुड़ा रहे हो. टिकिंग ऑफ मतलब अब उससे पीछा छुड़ा रहे हो. Mrs. Pearson, they are waiting for you at the club, George. Don't forget and don't start. You start crying again, Doris. जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ, क्लब में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, और डॉरिस तुम जाओ, रोना मत. That's enough, quite enough. तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड, यानी जिसके अंदर मिसेस पियर्सन है, वो बोलती है बहुत हो गया. अब जॉर्ज और डॉरिस दोनों को समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ भाई, पड़ोसी आके ये क्यों बोल रहा है. Now listen, you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz, with Mrs. Smith Pearson. So I'll be obliged if you leave us alone for a few minutes. I'll let you know when we have finished. Go on, please. I promise that you won't regret. There is something here only I can do. कहते अगर आप लोग थोड़ा सा मौका दो, मुझे इनसे पर्सनली बात करना है, और चिंता मत करो. आई एम ग्लैड समबडी बिकॉज आई कांट. कम ऑन डॉरिस. अब वो दोनों चले गए. अब दोनों सामने हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ. Why? Because this has gone far enough. I can see they are all miserable and I can't bear it. बहुत हो गया है, बहुत परेशान है मेरी फैमिली, मैं अब इसको टॉलरेट नहीं कर सकती. A bit more of the same would do them good. अरे थोड़ा और रुको और फिर देखना. Making a great difference already. देखो ऑलरेडी कितने में चेंजेस हैं. No, I can't stand any more of it. I really can't. We must try. तो ठीक है, वो दोनों जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर से मतलब कि रिलैक्स होते हैं. द सेम थिंग, लैक्स होते हैं, उसके बाद चेंज. दे कैरी द सेम एक्शन, गोइंग लैक्स मतलब थोड़ी देर के लिए, लैक्स मतलब लाइफलेस, फिर वापस. आ वेल, आई एंजॉयड दैट. मिसेस पियर्सन कहते हैं बट मैंने नहीं. वेल यू ऑट टू हैव डन. नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन. इट इज ऑल हैव बीन वेस्टेड. जो मैंने किया ना वो सब वेस्ट हो जाएगा. थोड़ा stubborn रहो. I'll try not to. They have not had as long as I would like to have given them. Another hour or two rough treatment might have made it certain. एक दो घंटा और मैं इनके साथ में ट्रीट करती ना, ये सब सीधे हो जाते. I'm sure they will do better, though I don't know how I'm going to explain. वही मैं, मुझे लगता है कि ये लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये लोग मुझसे किस तरीके, मैं कैसे समझाऊंगी. वो कहते हैं डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग. माफी मांगना या एक्सप्लेन करना छोड़ दो. इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. वो तो आप ये बात कह सकते हो क्योंकि वो आपके हस्बैंड और बच्चे नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकती. नाउ लिसन टू मी. यू एडमिटेड यू वर स्पॉइलिंग देम एंड दे डिडंट अप्रिशिएट एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशन. यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर. आई एम वार्निंग यू डियर. जस्ट गिव देम a look, a tone of voice and suggest you might be tough with them if you wanted to be. कहते कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुमने दोबारा से एक्सप्लेन किया या अपोलॉजी किया ना, तो वो लोग फिर वैसे ही बिहेव करेंगे. बस थोड़ा गुस्से में देख लो, बस एक आंख, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. कहते चलो वी कैन टेस्ट इट. कहते हाउ. वेल व्हाट इज यू वुड लाइक देम टू डू, दे डोंट डू. स्टॉप एट होम फॉर वंस. कहते क्या चाहती हो, चलो हम टेस्ट करके देखते हैं वो लोग सीधे हो गए या नहीं. वो कहते हैं ओके, गिव मी अ हैंड विथ सपर, मतलब मुझे खाना बनाने में हेल्प करें. अच्छा और कुछ. येस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर एक्सेप्ट एट क्रिसमस. एक पत्ते ताश का गेम खेल लें. दैट्स ऑल. डू देन. बट रिमेंबर कीप फर्म. होप यू कैन कम इन नाउ. और फिर वो उन दोनों सबको बोलते तुम लोग अंदर आ जाओ. अब आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ. कहती मैं जा रही हूँ, तुम एंजॉय करो. सब लोग मिसेस पियर्सन को देखते हैं जो कि वो अब हंस रही होती है. सब लोग खुश हो जाते हैं कि मम्मी वापस हंस रही हैं. डॉरिस, यस मदर, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट वी वुड डू. मिसेस फिट्जगेराल्ड वहीं से बोलते हुए जा रही होती है रिमेंबर, नो ऑब्जेक्शन आई होप. कहते मुझे लगता है कि आप लोग मेरा कहना मानोगे. कहते नो मदर वॉट एवर यू से. यहाँ पर जो नो मदर है, माँ, वो मतलब एक आयरॉन, मतलब कि वो मजाक उड़ाते हुए ह्यूमरस टोन में बोल रहा है. I thought we would have a nice family game of rummy. Then you children could get the supper ready while I have a talk with your father.
वो कहता है ठीक है, suits me, और बच्चों की तरफ देखता है, वो कहते हैं yes, that's all right, well, what speak up? Oh, I think it would be lovely. Goodbye, Mrs. Fitzgerald, come again soon. Yes, dear, night all, have a nice time. और उसके बाद फैमिली जो है मदर के चारों तरफ बैठ जाती है and the curtain falls. So this is the chapter what we call as Mother's Day, the day of mother. As I told you that there are lots of phrases in this chapter and you may be asked to explain. So read this chapter once again and then we would be moving towards the next section, that's doing the question answers and all.